Hello guys, let's start with the chemical reactions of aldehydes and ketones. The first type of chemical reaction in this video we're going to discuss is about nucleophilic addition reaction. If you remember this new word nucleophilic, you will remember nucleophile. Nucleophile is a nucleus loving species itself, which is rich in electron by having a negative charge or lone pair of electrons on it. Now, normally any reagent which is used in a particular reaction, when it breaks heterolytically, it forms two components. One which takes away the electron pair, that becomes a nucleophile. So automatically one which is electron deficient becomes a electrophile, electron loving. So one is rich in electron, attacks positive center, nucleophile and electrophile. Okay, now let us talk about carbonyl compounds. See properly, aldehyde and ketone. I made a structure of ketone for better explanation. In case of this carbonyl compound, C carbon atom attached to double bond O is sp2 hybridized. Therefore, this molecule is planar trigonal. All R, C, O are lying one single plane. Plus C double bond O mein O is more electronegative than this carbon atom. It will try to pull this electron pair having a partial negative charge and it has partial positive charge. और ये electron pair shift होके उसका एक resonant structure भी बनता है. That is C plus and O minus. So it is polar in nature, where carbon carries which charge on it? Positive. So this is a positive center on which nucleophile will attack. This pi bond shifts on oxygen. अब ये कार्बन sp2 से sp3 हो जाएगा. It will form an ion, oxonium ion or alkoxide ions, alkyl CnO minus, so alkoxide ions. This is a nucleophile attached to it. This will be a slow step attack of a nucleophile on it, and then when it comes into a tetrahedral manner, the electrophile, mostly the electrophile is H plus in aldehyde ketones reaction. It will appear in the second fast step. This will be a fast step, and H plus will gain electron from O minus to form OH. So this is a final product. So this is a kind of a nucleophilic addition reaction you will see in various reagents. Reagent like हाइड्रोजन साइनाइड HCN. HCN ब्रेक हो गया, H प्लस और Cn माइनस बनेगा, तो Cn माइनस विल बिकम अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बी अ Cn माइनस. इट कैन बी सल्फाइड आयंस, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है. RO माइनस कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव स्पीशी ऑन इट. ओके, सो एनी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशी विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन. याद रखने का, कार्बोनिल कार्बन which is a slow step followed by the protonation, that is the electrophile on the oxide ions to form the final product. Okay, where OH will be there along with the nucleophile. This nucleophile can be cyanide Cn, this can be SO3H. okay, this can be a OR RO minus, कोई भी हो सकता है nucleophile. NH2 minus अमोनिया का हो सकता है. Okay, now let's see the reactivity कि which aldehydes and ketones are more reactive in this kind of nucleophilic addition reaction. Okay, so first of all, nucleophile attacks on the, explanation बराबर सुनना, very important. Nucleophile attacks on the carbonyl carbon, positive center. तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोनिल कार्बन पे, ओके, उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. प्लस the nucleophile cannot attack from the front side, it attack from the back side, क्योंकि फ्रंट पे ऑलरेडी ऑक्साइड है जो उसको रिपेल करेगा. ओके, क्योंकि इट हैज अ नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको ऑब्वियसली रिपेल करेगा, तो इट हैज टू कम फ्रॉम बैक साइड. सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम बैक साइड बेसिकली टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, देयर शुड नॉट बी हेवियर ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन एटम, दैट इज अल्काइल ग्रुप. अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो स्टेरिक फैक्टर बनेगा. दूसरा, अल्काइल ग्रुप इज अ प्लस आर ग्रुप, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम. So when it donate electron to this carbon atom, it decrease the positive charge on the carbon atom, which makes the condition unfavorable for the attack of a nucleophile. सिंपल तरीके से इसको समझना है कि जितना R इंक्रीज होगा उतना रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा न्यूक्लियोफाइल का. क्यों? क्योंकि एक तो स्टेरिक फैक्टर है बिकॉज बैक साइड अटैक है, और दूसरा सेकेंड बिकॉज ऑफ प्लस R डिक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑफ दिस कार्बन एटम, मेकिंग द reaction unfavorable, conditions unfavorable. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ देर इज अ फिनाइल ग्रुप, AR ग्रुप, तो AR ग्रुप तो अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रिलीज कर देगा कार्बन पे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस.
तो पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया। तो जितना एरोमेटिक रिंग बढ़ेगा उतना डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी। सो नाउ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डिपेंड्स अपॉन प्लस आई, माइनस आई, स्टीयरिक फैक्टर एंड रेजोनेंस। प्लस आई इफेक्ट से रिएक्टिविटी इन्वर्सली है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप्स का होता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप्स आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली, फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट दिस RCOR कीटोन फॉर्माल्डिहाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल विल कम एन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। तो जब यहाँ से वो अटैक करेगा बैक साइड से, in case of formaldehyde there is no steric factor, plus in case of ketone there is a steric factor क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है, as well as there are two plus I groups। plus I groups क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे और उसका पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे। इसके लिए डेल्टा प्लस 2 इज लेसर देन डेल्टा प्लस 1। तो न्यूक्लियोफाइल ऑन फॉर्माल्डिहाइड विल रिएक्ट एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। प्लस स्टीयरिक फैक्टर आर। अब स्टीयरिक फैक्टर देखो कीटोन्स में आपको कैसा दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल दोनों आर की जगह पे इफ आई सब्स्टिट्यूट CH3, देखो मैंने यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लिया है, एक CH3 ग्रुप यहाँ लिया है, अटैच टू C कार्बोनेट अटैच टू डबल बॉन्ड O, दिस इज बेसिकली एन एसीटोन। अब ये एसीटोन पे CH3COCH3 पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से तो नहीं कर सकता। यहाँ से अटैक करना तो रिपल्शन हो जाएगा, तो फेवरेबल नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर रहा है तो फेवरेबल नहीं है। ओके अच्छा, यहाँ से इफेक्ट करने जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, स्टीयरिक फैक्टर, क्योंकि बैक साइड से ही वो अटैक कर सकता है फ्रॉम बैक साइड। तो अगर हेवियर ग्रुप होगा तो स्टीयरिक फैक्टर मिलेगा, और अगर हेवियर ग्रुप नहीं होगा तो स्टीयरिक फैक्टर नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वाई इन केस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड देर इज़ नो प्लस आर टू डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, एज वेल एज देर इज़ नो स्टीयरिक फैक्टर। अल्काइल में एक प्लस आर मिल रहा है, इसके अंदर 2 प्लस आर मिल रहे हैं कीटोन्स में, प्लस यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम, और यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर है। ठीक है ना। तो मतलब जितना आप अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करोगे उतना रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कम होगा। सेकेंड पॉइंट, माइनस आई या माइनस आर इंक्रीज करने से रिएक्टिविटी बढ़ता है। क्यों, ये देखो, दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। मैंने क्या किया, CH3CHO के तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। तो क्लोरीन विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज दे प्ले रोल ऑफ माइनस आई सिंस दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पुल करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी आएगा, लेट इट बी डेल्टा प्लस 1। अब मैंने सिर्फ एक ही क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से एक H से, तो यहाँ पर एक ही माइनस आई है, तो ये भी पुल करेगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा, दिस इज डेल्टा प्लस 2। बट सिंस बिकॉज ऑफ ग्रेटर पुलिंग इफेक्ट द पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड ऑन दिस कार्बोनिल 3 माइनस आई इफेक्ट, देखो कार्बोनिल पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इट इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बोनिल। तो एज माइनस आई इंक्रीजेज रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। रेजोनेंस से रिएक्टिविटी क्यों कम होता है, बिकॉज डेल्टा प्लस है कार्बोनिल पे, जो न्यूक्लियोफाइल जहाँ अटैक करने जा रहा है, तो ये क्या करेगा, रिंग अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ही कर दिया। देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज राइट नाउ ऑन द कार्बन एटम। ठीक है ना, द पॉजिटिव चार्ज इज इन द रिंग, सो मैं लिख सकता हूँ नो पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। डिफिकल्ट हो गया अटैक, पॉजिटिव चार्ज ही निकल गया। लेकिन रिंग में अगर NO2 ग्रुप लगाओगे माइनस आर, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और NH2 ग्रुप अटैच करोगे तो दिस इज प्लस आर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पुल करेगा माइनस आर। तो जब माइनस आर ग्रुप यूज होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम विल बी मोर। देखो ना, ये इसको पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर पुल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्रिएट होगा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पुल करना चालू कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर। सो इफ माइनस आर ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल इंक्रीज। सो माइनस आई विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी बिकॉज इट इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। प्लस आर ग्रुप लोगे, ओके, या प्लस आई ग्रुप लोगे, प्लस आई ग्रुप एंड प्लस आर ग्रुप, तो इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो रिंग इजीली इसको रेजोनेट करके यहाँ पर पहुँचा देगा इन डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज। सो यू हैव टू रिमेंबर शॉर्टकट
कि reactivity in nucleophilic addition, formaldehyde greater than aldehyde, then alkyl ketones, then benzaldehyde, then alkyl aryl ketones, then diaryl ketones, प्लस यू इंक्रीज अल्काइल ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. देखो यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप अटैच है CO को, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है. तो आप क्या कर रहे हो, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ा रहे हो. अल्काइल ग्रुप्स बढ़ाओगे, इफ अल्काइल ग्रुप्स इज इंक्रीजिंग, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस. ओके, एंड nucleophilic addition decreases. Same will goes to plus R. तो प्लस आर जितना बढ़ेगा या अल्काइल जितना बढ़ेगा, प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम हो जाएगा. रिमेंबर दिस थिंग, बेसिक आइडिया. ओके, okay, the first nucleophilic addition reaction is addition of hydrogen cyanide. हाइड्रोजन साइनाइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn माइनस आयंस. रिएक्शन इज वेरी सिंपल, कार्बोनिल कंपाउंड है, HCN is H plus Cn minus, obviously H will go to O and Cn minus will go to C, so it result into the formation of Cn और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH. now this molecule is called as cyanohydrin. okay, cyanohydrin बोलते हैं. बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल बिकॉज प्योर HCN यूज करोगे तो इट्स अ वीक एसिड, इट विल डिसोसिएट टू गिव्स वेरी लेस साइनाइड, तो लेस साइनाइड विल अटैक. सो क्या करना चाहिए, इस रिएक्शन को बेस कैटलाइज करना चाहिए. यू एड लिटिल बेस टू इट, सो व्हाट विल हैपन, HCN विल रिएक्ट विद फर्स्ट विद बेस टू फॉर्म लॉट ऑफ Cn माइनस आयंस, मोर कॉन्सेंट्रेशन, देन द रिएक्शन विल बी फेवरेबल. ओके, अब मैकेनिज्म देखो इसका. अब मैकेनिज्म इज not required for your HSC point of view. ठीक है, आपको HSC point of view पे सिर्फ ये एडिशन याद रखना है, HCN कैसा ऐड हो रहा है. मैकेनिज्म JEE नीट के अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो रिमेंबर दोज मैकेनिज्म फॉर अंडरस्टैंडिंग. जो भी मैं हैश मार्क करूंगा इट इज फॉर ओनली JEE नीट. ओके, नाउ फर्स्ट में बेस कैटलाइज्ड है, क्यों ज़्यादा HCN चाहिए, तो बेस रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म H2O प्लस प्रोड्यूस अ साइनाइड. साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल. दिस न्यूक्लियोफाइल गोज एंड अटैच ऑन द कार्बोनिल ग्रुप. क्यों, क्योंकि ये पोलर है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, पूरा पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा एंड साइनाइड गोज एंड अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म CnO माइनस, ऑक्साइड आयंस. नाउ फाइनली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ प्रोटोनेशन विद द ऑक्साइड आयंस इन दिस H प्लस. ओके, यहाँ मैं साइनाइड कर देता हूँ, साइनाइड Cn, and it result into the formation of Cn OH the bond. This is called as cyanohydrin. okay, for example मैंने एसिडाल्डिहाइड लिया है, तो सिंपल रिएक्शन है, क्या करना है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सिंपल प्लस और माइनस को ऐड कर दो, H goes to O, Cn goes to C, बिकॉज यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH OH Cn, एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, या तो 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल. अगेन चलो इस पे ऐड करना है, प्लस माइनस, दिस इज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, H goes to O and Cn goes to C, so you get a structure CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आएगा एक साइनाइड, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, या तो फिर 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मेंडिलो नाइट्राइल. ये किससे बनेगा, बेंजाल्डिहाइड लिया, HCN ऐड किया, तो H गोज टू O, Cn गोज टू C. ओके, सो यू गेट CHCnOH. नाउ दिस molecule 1 2 phenyl 2 hydroxy 2 phenyl ethane nitrile, also called as mendilonitrile. This is mendilonitrile. okay, it is used as a defense mechanism by millipede. millipede पे कोई दूसरे एनिमल अटैक करेंगे, at that time mendilonitrile in the body of millipede by an enzymatic action will convert itself, it will break, basically it will break to form benzaldehyde and hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide being poisonous in nature,
तो एनिमल को वो स्मेल आ जाएगा जो भी इस पर अटैक करने आएगा, तो इससे डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है. नाउ दिस नोट पार्ट इज़ अगेन फॉर JEN नीट. ओके, लेकिन ये पॉइंट याद रखना फॉर MCQ. साइनोहाइड्रिन्स जो कंपाउंड्स बने हैं आर फॉर्म बाय ऑल अल्डिहाइड, सारे अल्डिहाइड इसका बना सकते हैं, बट कीटोन्स में ओनली एसीटोन, ब्यूटेनोन, 3-पेंटेनोन एंड पिनाकोलोन, मैं बताऊंगा पिनाकोलोन क्या है, फॉर्म साइनोहाइड्रिन. बाकी और दूसरे कीटोन साइनोहाइड्रिन नहीं बनाते हैं. फॉर एग्जांपल 3-पेंटेनोन के बाद हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ये सब नहीं बना पाएंगे. साइक्लोहेक्सेनोन नहीं बना पाएगा. ओके, so it is only formed by those all aldehyde but only by these 4 ketones. Now different compounds साइनोहाइड्रिन से कैसा बनेगा. सपोज मैंने एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिया, ये वाला केमिकल एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. ओके, अभी एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, सो यू गेट C. मैंने बताया था ये साइनाइड्स के रिएक्शन में कंबाइंड रिएक्शन दिया था आपको HDA में, हैलोजन डेरिवेटिव. ना दिस केमिकल आपने देखा है लैक्टिक एसिड, आपको याद होगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. ओके, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड. अच्छा, अमोनिया से रिएक्ट किया तो OH विल बी रिप्लेस बाय अमोनिया माइनस H2O. इट यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट CHNH2Cl. फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस पे इट विल कन्वर्ट इनटू एन acid, so you get CH3, CHNH2COOH. This is alanine, first amino acid, glycine, sorry, this is alanine, the second amino acid. So this reaction of synthesis of amino acid is called as trigger synthesis of alpha amino acid. Okay, for JEN NEET remember this. MSc CT में कोई काम नहीं है. MSc CT में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एडिशन कैसा हो रहा है, लाइक दिस only these addition reaction and few information. Now the next reaction is action of sodium bisulfite, NaHSO3 plus minus. Okay, salt है ये sodium bisulfite. Now sodium bisulfite when react with carbonyl compound, by rule plus charge will go to oxygen, then SO3H obviously negative will go to carbon atom. यहाँ पर SO3H आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया. So you get a structure that is C attached to O minus Na plus. Again ये salt form में रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3H. Now there will be a proton transfer, मतलब H will goes to O side, Na will goes to SO3 to complete the salt, that is OH, and this is called as SO3Na minus plus. तो सोडियम बाइसल्फाइड का कंपाउंड बन जाएगा. तो सोडियम बाइसल्फाइड इस फॉर्म, मतलब इफ आई टेक दिस रिएक्शन, अगर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट मिलना है, ये एसिटाल्डिहाइड है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH. ओके, OH SO3Na. कीटोन का बनाना है तो CH3CH3. ओके, यहाँ पर क्या आएगा C के साथ में OH SO3Na. Sodium bisulfite. What is the uniqueness of this reaction? The uniqueness of the reaction is it is used for separation of the aldehyde ketone from the other organic compound. क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सेबल ही है. अगर यही सोडियम बाइसल्फाइड जो आपने बनाया है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा HCl डाल दोगे या NaOH डाल दोगे, दोनों में से एक, ओके, और NaOH, तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म दिस कार्बोनिल कंपाउंड अगेन, मतलब आपको वापस से ये अल्डिहाइड और कीटोन दे देगा. सो अगर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल आपको अल्कोहल दिया है और साथ में एसिडाल्डिहाइड दिया है, तो you add sodium bisulfite. Sodium bisulfite will react only with aldehyde, एसिडाल्डिहाइड. फिर उसके बाद में आप सेपरेट कर लो अल्कोहल को और फिर उसी कंपाउंड जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा उसमें HCl डालो तो वापस आपको मिल जाएगा एसिडाल्डिहाइड. सो यू कैन रीगेन इट. ओके, बट इस रिएक्शन को एसिडोफिनोल और बेंजोफिनोल, मतलब एसिडोफिनोल और बेंजोफिनोल को आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ये इफेक्ट कम दिखाते, ये नहीं दिखाते रिएक्शन. ओके, तो याद रखना ये दोनों सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करते. और सोडियम बाइसल्फाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, सेपरेशन, रिमेंबर दिस वर्ड. एक्शन ऑफ ग्रिडनाट आप लोग अल्कोहल में देख चुके हैं, फिर से वही रिएक्शन, फॉर्माल्डिहाइड, ग्रिडनाट, प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर अल्डिहाइड, सेकेंडरी, कीटोन, टर्शियरी, रिफर दैट पार्ट फ्रॉम अल्कोहल. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एसिटाल फॉर्मेशन.
अल्डिहाइड कीटोन्स पे अल्कोहल का क्या एक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, अल्डिहाइड कीटोन से। ओके, क्या बनाने के लिए, एसीटाल। एसीटाल क्या होता है, डाई एल्कोऑक्सी, एल्कोऑक्सी मतलब आरओ, लेकिन डाई मतलब 2 RO अल्कीन। सो 2 OR इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो जाएंगे तो बनेगा एसीटाल। ओके, कैसे, कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इट कैन बी आइदर अल्डिहाइड, इट कैन बी आइदर कीटोन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल ऐड करना, हम लोग फर्स्ट मॉलिक्यूल ROH ऐड करेंगे तो देखो बाय रूल H+ गोज टू O, OR will goes to C in presence of dry HCl gas। वाटर नहीं चाहिए वरना जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिवर्स हो जाएगा। सो यू गेट अ प्रोडक्ट C, बराबर देखना है प्रोडक्ट को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH, यहाँ पर आ जाएगा OR। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आएगा, फिर HCl आएगा तो देखो ये क्या निकला सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से, व्हाट आई एम रिमूविंग वाटर, तो R चले जाएगा O के पास। सो यू विल गेट अ फाइनल एसिटाल, OR OR, डाई एल्कोऑक्सी अल्केन। बट याद रखना बीच में जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ OH और R, इसको बोलते हैं हेमी एसिटाल, हाफ एसिटाल, क्योंकि एसिटाल क्या होता है 2 OR ग्रुप ऑन C, यहाँ पर हेमी मतलब हाफ, एक ही OR है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेमी एसिटाल और हाफ एसिटाल। लेकिन इन जनरल आपने क्या नोटिस किया कि ये O निकल जाता है और दोनों OR आ जाते हैं इस पे। मतलब अगर मुझे रिएक्शन फास्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 2 अल्कोहल लूँगा, ये लिखा ला, सीधा देखो क्या निकल रहा हूँ इधर से, ये देखो क्या निकल गया, H2O, वही निकलता है ना, H2O निकलता है ना इसके अंदर, प्लस H2O निकाल दो, सीधा दोनों C से OR अटैच कर दो, प्लस H2O। ये H2O को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, ड्राई HCl, इसके लिए इसका काम है इसका ऐड करना, वरना क्या करेगा, ये रिएक्शन रिवर्स कर देगा। देखो एसिटाल्डिहाइड लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लिया है, सो ये H2O हम लोग निकाल देंगे, शॉर्टकट रिएक्शन। अगेन यू गेट व्हाट, CH3 CH, अब 2 मॉलिक्यूल आ गया O C2H5 O C2H5, सिंपल है ना। मैकेनिज्म जेई नीट MSc CT वाले टेंशन ना ले, उनके लिए नहीं है ये। जेई नीट में भी ये आप लोगों को सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसा हो रहा है, आपको लिखने तो आएगा नहीं, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस, दैट्स इट। मैं थोड़ा इन डेप्थ जा रहा हूँ उसको पढ़ाने के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। सो मैकेनिज्म क्या, इट इज एसिड कैटलाइज्ड, याद रखो एसिड कैटलाइज्ड मतलब पूरा रिएक्शन ये एसिड स्टार्ट इनिशिएट करके दे सकता है। HCl क्या देगा, H+, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स हमको चाहिए और कार्बोनिल ग्रुप, तो पहले कार्बोनिल ग्रुप लो, उसमें एसिड डालो, कार्बोनिल ग्रुप लिया उसमें एसिड डाला, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, H+ को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, ये एसिड से आ रहा है H+, दिस H+ इज कमिंग फ्रॉम वेयर, एसिड। ओके, जैसे ही देगा O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पाई बॉन्ड पुल कर लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से C पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। नंबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल कम्स इन पिक्चर, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा C को डोनेट किया, बट ऑक्सोनियम आयन बन गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पुल करके H+ रिलीज कर देगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पर कंज्यूम नहीं होता, मतलब रिएक्शन में आया और वापस निकल गया बाहर। अब आपको मिल गया हेमी एसिटाल फर्स्ट, देन फिर H+ को लाओ, OH पे अटैक कराओ, प्रोटोनेटेड वाटर बनाओ, फिर यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाओ, फिर ये पाई बॉन्ड को पुल कर लेगा क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज है, H2O निकल गया, फिर C पे प्लस आया इसकी तरह, फिर से अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन आ गया उसको डोनेट करने के लिए, फिर वापस से H+ निकल जाएगा, स्टार्ट में आया निकल गया एंड में, बन गया एसिटाल। सिंपल है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके लिए मैंने एरो से आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसा हो रहा है, बट नो नीड टू learn it for your for your theory and for CD. Yes, it is there for JEE NEET for understanding part. बस एडिशन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से वाटर निकल रहा है and how those molecules have been added to the carbonyl carbon. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कीटोन अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते, कीटोन डायोल से रिएक्ट करते। फॉर एग्जांपल मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल लिया है, इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको रिएक्ट करा दिया तो देखो यहाँ से फिर ये वाटर निकल जाएगा। कीटोन मतलब नॉर्मल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक ROH से रिएक्ट नहीं कर रहे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब आपका हो गया ROH, इससे जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे, वो साइक्लिक्स बनाने के लिए इट रिएक्ट विद इथिलीन डायोल, 1,2 डायोल से रिएक्ट कर रहे हैं। H2O निकाल देंगे, एसीटोन आ गया था यहाँ पर, तो CH3 C
CH3 attached to O, attached to CH2, attached to O. This is cyclic ketal. Acetal से ketal बन गया. Okay, HCl gas absorbs water formed in the reaction as acetal and ketal can be easily hydrolyzed in presence of dilute mineral acid. मतलब अगर आपने अल्कोहल से ड्राई गैस लिया है, हीट किया, तो आपको एसिटाल मिलेगा, बट वही एसिटाल में थोड़ा वाटर ऐड कर दोगे तो पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. Okay, so we have done three nucleophilic addition reaction. Addition of hydrogen cyanide, then second is NaHSO3 sodium bisulfide, थर्ड इज ग्रिडनाट जो आप लोग अल्कोहल से रिफर करना है. इनफैक्ट 4 इज हम लोग ने 4 किया है. 4 विल बी अल्कोहल जो फॉर्म एसिटाल कीटाल. नेक्स्ट विल बी अमोनिया जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसके. ओके.